You are watching BPL Season 2. Welcome all of you wherever you are. The match between FS Enterprises and Agri Raja Pogaon. Faisal Sheikh, owner team FS, and Tejas Patil, owner team Agri Raja Pogaon. With me, Voice of India, Harish Pandya, joining in commentary. Two openers on the ground, Ajay Bhoir, shotgun of Diva, and Shekhar Dalvi, one of the complete technique batsmen, is going to be Akhtar Sheikh open the bowling attack. In this season, Akhtar Sheikh is the most economical bowler. First ball this time, lovely looking drive, but fielder finds the ball at deep extra cover. But with the stroke, Ajay Bhoir off the mark with single. Firmly driven. Yesterday, Ajay Bhoir played a cameo of an innings where he hit two beautiful towering shots, and today also he has started with confidence. Agri Raja Pogao has looked very strong when it comes to batting department. Yes, middle of the bat, but found the fielder at deep extra cover. This time it's over the infield. Terrific typical shot from Shekhar. All the way to the long on boundary for 4. Such a big sigh of relief for Shekhar Dalvi, who could not contribute in the first two matches with the runs. But then that is what we talk about all the time, that form is temporary but class is permanent, and he's an excellent leather ball and tennis ball cricketer and showing his class on that on drive, Shekhar Dalvi. Excellent stroke in the typical power play. This time fine comeback from Akhtar, but equally played, and with the stroke through for a quick single. Shekhar moves up to 5 and his score moves up to Agri Raja Pogaon 6 without loss, losing a toss batting first here. Akhtar Sheikh this time put away on the onside in vacant area, all the way to the mid wicket fence, lap sweep for 4. Clinical performance by Ajay Bhoir, the little master, the pocket rocket of Agri Raja Pogao, showing his class. He's a veteran, let me tell you. In the Grameen cricket, he plays for his home side, Diva, and here you see him, a beautiful sweep shot and ball travelling towards Balaji Globus for 4. 10 without loss. Fantastic start from Agri Raja. This time Matty blow. What a great hit. Slogging dash ball over mid wicket. Tremendous power and a fantastic timing all the way to the mid wicket for a glorious 6. Well, he has shown his class and immediately gets a pat on the back from Shekhar Dalvi, the senior partner. Here's the action replay. Akhtar bowling in the strong zone of the batter and picking it up early. And there she goes, sailing in the sky. Huge 6. Huge hit indeed. Gone out of park. Ajay Bhoir on fire now, and this is the flying start from Agri Raja Pogaon, 16 without loss. Akhtar, first time very expensive. And this is a neat and clean hitting by Ajay Bhoir as well as Shekhar Dalvi. Both the batsmen have played some remarkable shots on both the sides of the wicket. Akhtar Sheikh, left arm over the stumps. Both this time played slightly tentative stroke. Bowler back drive. Captain is there, and that marks expensive overturn from Akhtar Sheikh. Consider 16 runs without any wicket. Definitely a brisk start. Shekhar Dalvi on 5 of 2 with the help of that excellent boundary. And Ajay Bhoir, like yesterday, he has shown the consistent approach with his batting. And the team couldn't have asked for a better start than this, as the remaining 5 overs will certainly test the nerves of FS Enterprises bowlers. Yes, Suresh, some have a player anchor role in previous match like Kamran Khan. Now Shekhar is the matured player. This is the good start from Tejas Patil owner team, Agri Raja Pogaon.
You are watching Super Se Upar League, Bhiwandi Premier League Season 2. Good afternoon, all of you. Is going to be from far end, Haji Somerset stand and heart of Bhiwandi. Deepak Madhvi brought into the attack. Left arm round his stumps facing him Shekhar Dalvi. For Shekhar Dalvi, short Tharman. This time try to cut edge of the bat, rose to short Tharman. Arbaz Patel is there. Meanwhile, batsman gets one. 1-2 total now, 17 without loss. This is definitely a kind of a do or die match because it's the survival of the fittest. When you lose two of your best games, you would not want to lose further because that will reduce the chances of qualifying for the Super 8. This time another delicate late cut, but Deepak Madhvi is the slow medium. Wide as ball is travelling slowly to Dipesh Gali and they threw for one. Well, it's a pleasure seeing both the senior players facing each other, Shekhar Dalvi and Deepak Madhvi. This time it's hard and high. What a great stroke with the straight bat right on the side screen. Magnificent stroke from Shekhar for a glorious six. It's high, it's long, it's strong, and that is Shekhar Dalvi for you. The exquisite timing that he has shown today. Previously, he hit one boundary, and now with the six, he has come back in this game. And Agri Raja Pogao definitely looking more dangerous this afternoon. Look at that. Look at that. Slightly removed from the line. Picks on the half volley. Beautiful foot balance. Middle of the bat. And all the way to the down the ground. All the way to the side screen for a glorious six. His score is 24 without loss. This is the flying start because in previous two matches, Agri Raja won by 2 and point table they have 4 points. This time square cut. Delightful stroke indeed with given by bowler and ball is racing all the way to the cover point boundary for 4. Delightful lofted square cut from Shekhar. He is cutting them to ribbons now, and that was an elegant looking stroke from the stroke maker Shekhar Dalvi, who is now on 16 of 5 deliveries. 28 without loss. We are in over number 2. Yes, Harish, counter attack begin now. Both are playing very well. Expensive so far, Deepak. This time fine delivery, but equally played, firmly driven to wideish, deep mid off. And with the stroke batsman through for 1. His score was up to 29 without loss. Agri Raja Pogao losing a toss batting first year against FS Enterprises. This time down the ground. 1 bounce and 2 bounce. Ball is crossed the long off boundary. Played a very straightish long off. 4 runs. Played on the rise. Look at the timing of both the batters. One is looking like a timing of Rolex and one is like a timing of Rado. The way they are playing their shots, it's such a beautiful start. You couldn't have asked for a better start than this. Siddiq Bhai, when you have already won 2 of your league matches and if you win this, then you are almost certain to qualify for the next stage, and that is where FS Enterprises will have to come out of their comfort zone and grab the wicket. 2 ओवर की समाप्ति, धमाकेदार शुरुआत यहाँ अग्री राजा पोगाव की। हरी जी ये सवाल कर रहा हूँ, इस शॉट को देखिए। आजकल टेनिस क्रिकेट में हम देखते हैं कि स्ट्रेट बैट से जब शॉट खेला जाता है, थोड़ा सा बैट्समैन अपने आप को लाइन से थोड़ा अलग करता है। नहीं तो जैसा आपने देखा होगा, हमने मेयर कप के दौरान भी बात की थी, ट्रिगर मोमेंट्स जो बल्लेबाज होते हैं, अगर शरीर के जो पैर है उसकी जो ट्रिगर मूवमेंट टाइम पर करते हैं आप, तो आप अपने आप को वो एक ऑप्टिमम पोजीशन में लाते हैं जहां से आप अपना स्ट्रोक खेल सकते हैं। और मैं समझता हूं दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी ऑन दी राइज आज बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं, लेकिन अभी एफएस एंटरप्राइजेस को विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अगर विकेट नहीं गिरेगा अगर अगले 2 ओवर में,
तो देर हो जाएगी। और फर्क है कि आगरी राजा अपने दोनों मैच जीत के मैच खेल रही है और एफएस ने अपने दोनों मैच हारे। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, इस मर्तबा वारगरी की गेंद को निकाल दिया है। पीछे फील्डर खड़े हैं, डीप बैकवर्ड पॉइंट लगभग स्क्वायरिश थर्ड मैन पर। एक रन आता हुआ, एक रन से स्कोर 34 पे पहुंचा है। 34 रन बिना किसी विकेट के। देखिए विकेट लेना ही होगा, अगर आप विकेट नहीं लेते हैं तो फिर बल्लेबाज और खुल के बल्लेबाजी करेंगे। आकाश वारगरे फुल टॉस गेंद सफाई से तो नहीं खेल पाए, टर्न जरूर किया ऑन साइड में, एक रन। मिस्ट्री गेंदबाज हैं, लेग ब्रेक में गूगली का भी मिश्रण करते हैं, स्लो मीडियम भी करते हैं और तेज भी करते हैं। और बल्लेबाज अजय भोईर बराबर से शॉट को टाइम नहीं कर पाए थे। वजह ये भी थी कि सर से टोपी गिर गई थी और जो इस बात को बता रही थी कि वो उतने आत्मविश्वास से नहीं खेले थे। 35 रन। इस मर्तबा इंतजार किया और वार किया, क्या शॉट खेला है। लॉन्ग ऑन वाइडिश के ऊपर टर्न होने का इंतजार किया, यह है क्लास शेखर दलवी का। लॉन्ग हॉप गेंद जो घुटने की ऊंचाई तक आती है, इंतजार किया, फिर इजहार किया, इकरार किया, फिर वार किया और गेंद को मैदान के बाहर किया। गेंद को मैदान के पार भी किया। इस सिक्सर से रन मानो अब इतना तेज बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं माजिद बोबड़े का जो माथा है वो ठनका होगा कैप्टन का। काफ़ी लेजेंड्स की तस्वीरें वहाँ पे लगी हुई है, महान हस्ती, उनके बैनर के ऊपर से गेंद निकल गई। 6 रन स्कोर है इस वक्त 41 रन 41। फ्लाइंग स्टार्ट हम देख रहे हैं। आकाश वारगरे, एक और आसमानी टोला, ये जाएंगे स्टैंड में। 6 रन। शेखर दलवी फॉर्म में आ गए, कल हमने देखा प्रतीक भोईर फॉर्म में आ गए। आगरी राजा पोगाव के लिए सब कुछ सही चलता हुआ इस वक्त, मतलब मानो दे आर आइसिंग ऑन द केक, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल, पूरा BC4 सीजन में वो ये फॉर्म में नहीं थे और प्रतीक भी नहीं, दोनों BPL में फॉर्म में। इस मर्तबा डाउन द ग्राउंड खेला है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, कप्तान छपटते हुए गेंद पे, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। लेकिन 1 रन से स्कोर कहाँ पहुंचा है? 48। ऑलमोस्ट 17 रन प्रति ओवर के औसत से बैटिंग की जा रही है। आकाश वारगड़े के इस ओवर में 15 आए। अजय भोईर 7 बॉल 17, शेखर दलवी 10 बॉल 31 और हमारे बीच SK स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर, इनका आगमन हुआ है। हार्दिक स्वागत है शादाब कोटकर। बहुत ही करीबी दोस्त हैं। इस मर्तबा घुटना टेक, लेकिन फील्डर को पीछे पाया और वाइडिश मिड विकेट पर आउट होके आ रहे हैं अजय भोईर। आकाश वारगड़े के लिए भी ये खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि एक बड़ा विकेट उन्होंने हथियाया है। 17 रन बनाकर आउट हुए 8 गेंदों का सामना करते हुए। लंबा हिट लेने का प्रयास था और एक बेहतरीन कैच वहां पर लिया गया। केतन ने यह कैच लिया है। बढ़िया कैच डीप में पकड़ते हुए अजय भोईर ने आउट होने से पहले 17 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। एक अच्छी पार्टनरशिप, और इस तरह का जब स्टार्ट मिलता है तो जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है जहां वो खुले जहन से बल्लेबाजी कर सकते हैं। प्रेशर इस वक्त जो है वो आगरी राजा पर नहीं है, प्रेशर जो है इस वक्त FS पर है। ये हमारे तमाम स्पॉन्सर्स जिनको हम शुक्रिया कहना चाहेंगे, 70-70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद साहब, फुल टॉस बॉल अली असगर साहब, A1 चिकन सेंटर, इनके हम आभारी हैं।
इसके अलावा हम आभारी हैं एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन साहब, O2 लाइफ शाहिद पापा, इनके विशेष आभार, धनेश स्पोर्ट्स कुकसे पांडुरंग धर्मा पाटिल, इनका विशेष आभार, शुमाइल सूसे इनके भी हम आभारी हैं। ये वो तमाम टीमें जो प्रतियोगिता में खेल रही हैं। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने, 48 विकेट गिरा है। एक नए बैट्समैन ऑल इंडिया आइकॉन सुहास पवार। हरीश, ये बताइए कि आपके सामने सुहास पवार का ऐसा कौन सा प्रोफेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड है जो आप शेयर करना चाहेंगे? सूरत में एना में 4 गेंदों में 4 विकेटें, ये डबल हैट्रिक सुहास पवार के नाम, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है। और जैसा मैंने कल भी बताया था कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आइकॉन प्लेयर वाले टूर्नामेंट खेलने वाले खिलाड़ी जो है वो है सुहास पवार। देखना है कि सही समय पे आए हैं अख्तर शेख। इस मर्तबा घुटनों के बल बैठ के सीधा खेला मिड विकेट बाउंड्री पर, और सुहास पवार शून्य का चश्मा पहन के वापस। लोअर फुल टॉस गेंदे, हालांकि फुल टॉस गेंदों से फुल टॉस कैडेट 24 से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, लेकिन अधिकांश बार देखिए हरीश, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे टेनिस, लोअर फुल टॉस गेंदे अधिकांश बार बैट्समैन के लिए घातक साबित होती हैं। सुहास पवार जो बढ़िया रन रेट था उसको और बेहतर करना चाहते थे और ऐसा करते समय लोअर फुल टॉस पर अपना विकेट देकर वापस लौटे। एफएस एंटरप्राइजेस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था जहां पर भावेश ने उस कैच को अंजाम लिया। नए बैट्समैन इस सीजन के बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले प्रीतेश पाटिल। पिछले 2 सीजन से ये बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है और ब्रांड एम्बेसडर भी कल 70 के बन चुके हैं प्रीतेश। मैन फ्रॉम द अख्तर शेख सामना करेंगे प्रीतेश पाटिल। टोटल बहुत अच्छा है। इस मर्तबा हुक कर दिया है, सीधा नाप तोल के मारा हुआ स्ट्रोक है और अंपायर का इशारा के 6 रन। बॉल के लेंथ को जल्दी पड़ा। प्रीतेश पाटिल जो कल का अच्छा प्रदर्शन रहा है, 70 स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते 5,000 रुपये कल तारिफ सैयद ने दिए थे। और आज देखिए, आते ही अगर आपको लेग स्टंप पर हाफ ट्रैकर गेंद मिलेगी तो वो मैदान के बाहर ही जाएगी और एफएस एंटरप्राइजेस के बैनर के ऊपर ही वो स्ट्रोक उन्होंने लगाया। देखिए रिफ्लेक्सेस उनके कितने तेज है, बहुत जल्दी अपने आप को गेंद की लाइन के अंदर ले आए थे। बेहतरीन शॉट। इस मर्तबा नजाकत से खेला है, बहुत ही खूबसूरत बल्ले के फेस को खोलते हुए गली की बगल से 4 रन। दिलकश स्ट्रोक, जाजिबुल नजर शॉट। इस तरह के शॉट नजरों में, ये देखिए चॉप स्टाइल। बहुत अच्छा स्टीयर किया था जिस तरह से उन्होंने उस गेंद को लिया था। और सिद्दीक भाई, अगर एक स्टेशनरी के दुकान से सुंदरम की बुक हो और आपके हाथ में रेनॉल्ड्स का पेन हो तो कागज पर लिखने का जो मजा आता है, वैसा मखमली मुलायमी शॉट था। सिल्की टच हम कह सकते हैं। ये चौका आता हुआ 10 पे तुरंत ही पहुंच गए प्रीतेश और स्कोर को पहुंचा दिया 58 पे। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, कट के अंदर की जानिब गेंद आई थी, अटपटे अंदाज से खेला है और जोखिम बड़ा है। 2 रन पूरे करते हुए वहां पर बैट्समैन। हालांकि उमर खान ने कोशिश की थी बेस गिराने की। ये देखिए थ्रो आता हुआ डीप से, थ्रो बहुत अच्छा था लेकिन गेंद हाथ से छूटी और स्टंप्स पे हाथ लग गए। महंगा पड़ सकता है ये विकेट। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, सीधे प्लेट से ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन पे। थोड़ा फंबल किया था वहां पर दीपक मडवी ने। 1 रन आता हुआ। चौथा ओवर चल रहा है। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। बालाजी ग्लोबस और गाउदेवी 3 स्टार। नेक्स्ट मैच, उसके बाद सोना देवी, विहान मित कुमार, अगरी राजा पोगांव
आखिर में राजस्थान रॉयल और बालाजी ग्लोबल। बोल्ड परफेक्ट गेंद, ये ही गेंद थी जो शेखर को आउट कर सकती थी। अख्तर शेख जिसका यॉर्कर पूरा भिवंडी रहा है, देख क्या ज़बरदस्त यॉर्कर किया। और ये विकेट ने यहाँ पर जो कहते हैं ना कि सहरा के डेजर्ट में आपको जब पानी मिल जाए तो वो जो खुशी मिलती है, बिल्कुल उस तरह ये परफेक्ट यॉर्कर बेल्स हवा में उड़ी और वहाँ पर विकेट भी ले उड़ी वो गेंद फुल टॉस की। 4 ओवर 61 रन 3 विकेट। बढ़िया बल्लेबाजी के बाद 31 रन बनाए शेखर दलवी ने। 10 गेंदों का सामना किया, बिग हैंड दिए जा रहे उन्हें। प्रीतेश 4 गेंदों में 13, प्रतीक भुईर ने बैट्समैन। और यहाँ से इस मैच के आंखों देखा हाल के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा दोनों बड़े कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत आपके साथ रहेंगे। आइए अजय घरत हमारे साथ जुड़ते हुए हमारे काबिल दोस्त। गेंदबाजी में तब्दीली, दीपक मढ़वी अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने के लिए आ रहे हैं। हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को जुमा मुबारक। आज बड़ा दिन है, फ्राइडे, फैंटास्टिक फ्राइडे। अजय यही वो जोड़ी है जिसने आगरी राजा के विजय के इतिहास को कल लिखा था पहले मुकाबले में, और वही जोड़ी अब वापस हमारे सामने आ चुकी है। दीपक मढ़वी, नए ओवर की पहली गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई। अजय आज देखिए अब पिच भी सूख चुका है, गेंदें नीची रह रही है और हर मैच में 1 या 2 गेंदें नीची डेफिनेटली रह रही है। और ये बहुत ही खतरनाक संकेत मैं समझता हूँ बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि ये तो केवल दूसरे दिन का खेल है और पूरा 11 दिन का टूर्नामेंट है। इस बार ज़्यादा दूर रखा, वाइट का इशारा, वाइट बॉल। दीपक मढ़वी क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हैं और क्रीज के कोने से जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आपके लिए गलतियों के लिए अवकाश कम रहेगा। बहुत अच्छा व्यू प्रिंस मूवीज़ का। देखिए जो हमारे कैमरामैन हैं उन्होंने जान डाल दी है इस टेलीकास्ट में। रवि गुड़वी और उनकी पूरी टीम, उनके ग्राफिक्स, उनके कैमरामैन, उनकी एडिटिंग टीम, मिक्सिंग टीम, हमारे डीजे जॉली सुमीत, इनकी टीम ने भी बहुत अच्छा संगीत आपके सामने पेश किया है। यानी कि हर एक व्यक्ति को जो रोल दिया गया है उसको अच्छी तरह से निभाया जा रहा है इस बीपीएल सीजन 2 में। फिटिंग अ राइट मैन टू द राइट जॉब इंस्टेड ऑफ जॉब टू द मैन, ऐसा कहा जाता है। इस बार बेहतरीन कैच माजिद बोबरे द्वारा और यहां पर दीपक मढ़वी को मिलती हुई एक और सफलता। आगरी राजा पोगांव की सल्तनत को ललकारता हुआ एफएस एंटरप्राइजेस। और ये बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि कल बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी की थी प्रीतेश ने। थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद आड़े बैट से सामने खेला और बहुत ही लाजवाब कैच, काफ़ी दूर से भागते हुए आए थे अपनी बाई तरफ माजिद बोबड़े। पूरी जी जान लगाकर हमेशा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 100% कमिटमेंट हमेशा देने की कोशिश होती है माजिद बोबड़े की। अजय मुझे ऐसा लगा कि उनके पैर में जूते नहीं, स्केट्स लगे हों जिस तरह दौड़कर आए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का जब एक कैच भी हो जाता है ना, पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज जो है वो जंप करती है और सकारात्मक होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। और ख़ास तौर पर आपका कप्तान इस तरह से कैच ले तो फिर क्या कहने। 62 रन 4 विकेटों के नुकसान पर दीपक मढ़वी अब तक 18 रन देकर 1 विकेट ले चुके हैं। ये उनका दूसरा ओवर है। नए बल्लेबाज है हेमंत हरड़। प्रीतेश पाटिल आउट होकर वापस लौटे हैं। 62 पर 4, 5वां ओवर। इस बार ड्राइव किया लेकिन थोड़ा आंखों को मूंद लिया था और अपने आप से खुश नहीं है हेमंत हरड़, क्योंकि बड़े स्ट्रोक मेकर है। और दीपक मढ़वी थोड़ा उनसे लाइटर मोमेंट शेअर करते हुए, यस मला माहीत आहे तू चांगला फलंदाज आहेस, परंतु मी सुद्धा तेवढा चांगलाच गोलंदाज आहे। 63 फॉर 4, 63 धावा 4 बाद। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, 1 रन और मिल जाएगा।
अच्छा खेलते हैं हेलीकॉप्टर। कल भी उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाया था फाइक अंसारी के विरुद्ध, जो एक ब्लॉक होल में गेंद की गई थी, जो 3 लगातार छक्के जड़े थे, उसमें वो तीसरा छक्का था काउ कॉर्नर की तरफ। शुरुआती जो ट्रेंड आए हैं उसमें आगरी राजा पोगाव ये उभर कर आई है लीडर बोर्ड पर। बालाजी ग्लोबस ये टीम भी बहुत स्ट्रांग नज़र आई है। अन्य तमाम टीमों के लिए भी मौका है। सोना देवी वियान मीत कुमार ने अच्छा परफॉर्म किया। राजस्थान रॉयल्स ने विजय का मीठा स्वाद चखा। इस बीच अगली गेंद और यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट खेलते समय दीपक मडवी को विकेट मिला। हेमंत हरड़ जिसके विकेट को लिया दीपक मडवी ने। हेमंत हरड कल भी कहीं ना कहीं बल्ले से उतना अच्छा योगदान नहीं दे पाए थे। पहले मैच में इसी सिचुएशन में आए थे, अंतिम ओवर्स में बल्ले के बीचों बीच पूरी तरह से ले नहीं पाए और ज़्यादा ऊंचाई थी स्ट्रोक में। डाउन द विकेट एक अच्छा कैच वहां पर बाउंड्री लाइन के नज़दीक। ये दूसरा कैच लपका है इस ओवर में माजिद बोबड़े ने। बहुत ही शानदार कैचिंग उनकी देखने को मिल रही है और डेथ ओवर्स में जिस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए आगरी राजा पोगाव टीम के लिए, उस तरह से बल्लेबाजी नहीं हो रही है। और देखिए माजिद को एक अच्छा मौका है उमर खान जैसे बहुत ही कामयाब कैप्टन के साथ काम करने का। तो उमर खान को उन्होंने विकेट कीपिंग के लिए छोड़ दिया है। माजिद ने स्वयं अपने आप को आउटफील्ड में रखा है। ये बहुत ज़रूरी है कि एक आपके अंदर वो पुरखुलूस अंदाज हो, अमन और अखलाक के साथ खेलना। उमर अगर सीनियर क्रिकेटर है मैं उनको तवज्जो दूंगा, आई विल गिव हिम चांस और मैं आउटफील्ड में आऊँगा। 2 बेहतरीन कैच माजिद बोबरे द्वारा। और माजिद बोबरे के हर कैच के साथ पायनियर स्पोर्ट्स का समर्थक, हर खिलाड़ी खुशी से झूमता हुआ, जिसमें हमारे रमीज रईस भी शामिल है। कमेंट्री बॉक्स में है इस समय, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इस बार अपील की गई थी और ओवर यहाँ पर मुकम्मल दीपक मडवी ने क्या कामयाब ओवर किया। 2 ओवर 20 रन 2 विकेट, 5 ओवर 64 रन 5 विकेट। और इस ओवर में केवल 3 रन खर्च किए दीपक मडवी ने, 2 सफलताएं प्राप्त की। पहला ओवर उनका महंगा रहा था। बाउंस बैक किस तरह से करना होता है ये उसका उत्तम उदाहरण यहाँ पर पेश किया है दीपक मडवी ने। दीपक को देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है अजय। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हदों को रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे। दीपक मडवी उम्र के 44वें साल में है। इट्स सिंटिलेटिंग 44 ईयर्स। और उसमें आज 40+ क्रिकेट हो, ओपन क्रिकेट हो, ग्रामीण क्रिकेट हो, सिटी क्रिकेट हो, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट हो, दीपक मडवी ने अपने अंदर के उस दीपक को अब तक जगाए रखा है कि अभी बहुत सारा फायर मेरे अंदर बाकी है। उनको देखने के बाद बिल्कुल भी लगता नहीं है कि 40+ होंगे और उनका क्रिकेट देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। अभी भी लगता है कि बहुत जवां है और उनका क्रिकेट भी वाकई में जवां है। खासतौर पर इस सीज़न में, पिछला सीज़न उतना अच्छा घटा नहीं था, लेकिन ये सीज़न उनके लिए बहुत ही अच्छा घट रहा है गेंद के साथ। तो नया ओवर लेकर आ रहे हैं जैन खान। एक अनयूजुअल बॉलिंग एक्शन है उनका। 64 पर 5। मेरे ख्याल से एफएस एंटरप्राइजेस ये स्कोर को 75 के अंदर रखना चाहेगी, जबकि आगरी राजा पोगाव 80 के मैजिक नंबर को छूना चाहेंगे। प्रतीक भोईर जो कल बेहतरीन मेरे ख्याल से 33 या 34 रनों की पारी खेली थी, वो सामना करेंगे जैन खान का। जैन खान को भी लगातार मौके मिल रहे हैं गेंदबाजी में और उनका जो क्रम है बॉलिंग का वो भी लगातार बदला जा रहा है। तो ये बड़ी चुनौती है उनके लिए और काफ़ी कुछ सीखेंगे। अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, शायद बल्ला लगा होगा। गेंद जा रही है मिड विकेट के स्थान पर। 2 रन लेने का प्रयास और बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। और लेग बाई का इशारा, ये रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा फैसला अंपायर का। निश्चित रूप से ये गेंद लेग स्टंप के थोड़ी बाहर जाती। गेंद पैर पर ज़रूर टकराई थी लेकिन लेग स्टंप को मिस कर रही थी। गोकुल पाटिल मुख्य अंपायर की भूमिका में, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय शानू कुरैशी, ये 2 ऑनफील्ड अंपायर इस मैच के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, स्क्वायर ड्राइव कर दिया है और गेंद जा रही है गैप में, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत ही जारहाना अंदाज में ये स्ट्रोक खेला गया है प्रतीक भोईर द्वारा। और प्रतीक भोईर एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास सारे स्ट्रोक्स है, सामने भी अच्छा खेलते हैं और स्क्वायर ऑफ द विकेट भी। ये देखिए कितना खूबसूरत ये स्क्वायर ड्राइव उन्होंने लगाया है।
प्रतीक भोईर का फॉर्म में आना आगरी राजा पोगाव के लिए अच्छी बात। इस वक्त आगरी राजा पोगाव कामयाबी के घोड़े पर सवार है और उनकी ये घोड़दौड़ को रोकने का प्रयास अभी तक कोई टीम द्वारा नहीं हुआ। हाँ, एफएस के पास आज वो मौका है कि वो विजयी रथ को रोके। उमर खान, माजिद बोबड़े, भावेश चौधरी ये खिलाड़ी हैं, इनको खेलना होगा 70 पर 5। गति में परिवर्तन, हवा में रही गेंद और कैच वहां पर छिटक गया है हाथों से। रनआउट का भी मौका है लेकिन गलत एंड पर थ्रो। उमर खान के हाथ से कैच छूटा और इसको किस तरह से देखा जाएगा टीम मैनेजमेंट द्वारा? 72 पर 5। कई बार अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के हाथों से कैच ड्रॉप होते हैं, ये क्रिकेट का खेल है। खास तौर पर थोड़ा जब कैजुअल अप्रोच आपका रहता है, बहुत आसानी के साथ आप कैच लेने का प्रयास करते हो, तब ये गलतियां होती है। अपर कट करना चाहते थे, ये देखिए बहुत सरल अवसर था। 72 पर 5, 3 गेंदे पारी में शेष। सीधे बल्ले से तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, गगनचुंबी सिक्सर। अब इसको कहते हैं टाइमिंग। टाइमिंग क्या होता है? ताकत नहीं, केवल टाइमिंग के बलबूते पर यह स्ट्रोक प्रतीक भोईर ने खेला है। और प्रतीक भोईर आगरी राजा पोगाव की जो घोड़दौड़ है, अब रनों की घोड़दौड़ और मजबूत होती हुई यहाँ पर 72 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ये तीसरा मुकाबला है आगरी राजा पोगाव टीम का और एफएस का भी तीसरा मैच है। तो अब जाकर वो 78 होता हुआ, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा इंटरनेट स्लो होने की वजह से स्कोर देरी से अपलोड हो रहा है, दर्शकों की हम माजरत चाहते हैं। 78 फॉर 5। दिशा इन गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, थोड़ा दबाव महसूस करते हुए जैन खान मिश्रण करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मिश्रण करते हैं, जिस वजह से थोड़े दिशाहीन भी हो जाते हैं और कई दफ़ा हमने देखा है कि काफ़ी महंगे भी साबित होते हैं। अंतिम 2 गेंदे पारी में शेष है। आगरी राजा पोगाव टीम का जो फॉर्म है वो बहुत ही लाजवाब, पहले दोनों भी मैचेस उन्होंने जीते हैं। अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अपील में कोई ज़्यादा दम नहीं था। लेकिन एक अच्छी गेंद, डॉट गेंद यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉट गेंद मतलब विकेट लेने के बराबर ही है इस समय। एक खुश खबर है जो मैं बताना चाहूँगा। इस गेंद के बाद अंतिम गेंद बहुत बढ़िया लेग कटर, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, बीट हुए। अंतिम गेंद पर भी कोई रन नहीं, तो इस तरह से आगरी राजा पोगाव टीम की पारी समाप्त होती हुई। बहुत ही शानदार ये गेंद रही जैन खान द्वारा। 79 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यह है फाइनल स्कोर इस मैच में आगरी राजा पोगाव टीम का, और 6 ओवर्स में एफएस एंटरप्राइजेस के सामने 80 रनों की चुनौती। तो खुशखबरी है दोस्तों, महापुली की बहुत बड़ी शख्सियत फरहान पटेल साहब द्वारा 18 टीमों के लिए जो 18 ऑल इंडिया आइकॉन खेल रहे हैं, वो हर एक खिलाड़ी को एक गिफ्ट फरहान पटेल साहब द्वारा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते सीधा टॉस के लिए। आप बीच में आइए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का मैं पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम पर कल से शुरू हुई ये प्रतियोगिता 11 दिन चलेगी। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के चौथे मैच का टॉस लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये टॉस का सिक्का है जिसमें एक तरफ BPL यानी कि भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 लिखा हुआ है, और एक तरफ अगर आप देखें तो BC4 जो भिवंडी के क्रिकेट कमेटी है जो कंट्रोल करती है सिटी क्रिकेट को, उनका लोगो आप देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वसीम भाई अंसारी उपस्थित है, रियल स्टील, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए लापाज बुटीक का शर्ट स्पॉन्सर किया है, और स्वयं बहुत अच्छे लेदर बॉल क्रिकेटर हैं, फेसबुक पर एक्टिव भी रहते हैं, मार्क रियल। और इनका जो कैप का सिलेक्शन है, मैंने मेरी ज़िंदगी में वसीम भाई आपसे बेहतरीन कैप का कलेक्शन किसी के पास नहीं देखा। वसीम का मतलब होता है हैंडसम, और आपकी वो हैंडसम शख्सियत और दस्ते मुबारक से ये टॉस करने जा रहे हैं।
BPL इज द कॉल। सिक्का नीचे जा चुका है। सिक्का भी खेल रहा है हमारे साथ। तो फिर से सिक्का उछाला जाएगा। सूरज जोशी, बालाजी ग्लोबस और फाइक अंसारी गांव देवी 3 स्टार। BC4। तो शुक्रिया। तो फाइक आपने ये, आइए बैठ के बात करेंगे जी। फाइक टॉस जीतकर आपने क्या डिसीजन लिया है? हम लोग फील्डिंग करेंगे। शुक्रिया। सूरज अर्थात काल एक चांगला सामना हातातून सुटला, म्हणजे आधी एवढा चांगला संघ असून कुठेतरी असं वाटते की काल झालं ते झालं, आज नवीन दिवस आहे म्हणून आपण एक नवीन जोमाने लागूया कामाला. नाही बरोबरच आहे, जो कालचा झाला तो झाला, हार जीत ते होतेच. जो चांगला खेळतो तो जिंकतो. आमचं थोडं काहीतरी कुठेतरी कमी पडलं असेल म्हणून हारलो, पण आज नव्याने उतरलो, आज नवीन याच्याने संकल्पने उतरलो का आज काहीतरी करायचं म्हणून. तुमचा संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे आणि हा सामना खूप महत्त्वाचा आहे, कारण गावदेवी 3 स्टारला पण पहिला विजय हवा आहे आणि तुम्हाला पण अजून एक विजय घेऊन पुढे जायचं आहे. तर अशा वेळेला गेल्या 2 दिवसाचं क्रिकेटचं मोजमाप घेता तुला असं वाटते की एखादा पर्टिक्युलर स्कोर हे पहिला फलंदाजी करणाऱ्या संघाने केला पाहिजे? आजचं जर पहिल्या दिवशीचा स्कोअर बघितला तर 70-80 प्लस होत होता, आज बघितलं तर 60-70च्या आतच होतोय, पण जेवढं 60-70 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू. कारण की फायटिंग स्कोर आजचा मला वाटतो, कारण की आज मी सकाळपासून 2-3 मॅच बघितल्या, त्यामुळे 60-70च्या आतच स्कोर होतोय. अगर आपके बस में होता तो आप क्या चूज़ करते? हम लोग भी पहले फील्डिंग करने वाले थे, मगर अभी हम लोग को बैटिंग करना है तो हम लोग बैटिंग करेंगे अभी. बहुत लोग मैंने देखा है कि सबसे पहले फील्डिंग चूज़ करते हैं, क्या बेसिक कारण रहता है इसका? फील्डिंग कैसे पहला मैच रहता है तो आदमी थोड़ा ये रहता है, थोड़ा बॉडी फिट होने के लिए फील्डिंग करेंगे तो ज़रा अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे ग्राउंड में आते ही पहला मैच रहता है तो ज़रा वार्म अप वगैरह हो जाता है, उसमें अच्छे से ज़रा हो जाता है ज़रा. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. धन्यवाद. तो दोस्तों अभी अभी टॉस हुआ है और इसको जीता है गावदेवी 3 स्टार ने. फील्डिंग करने का फैसला किया है. बालाजी ग्लोबस पहले बल्लेबाजी करेगी. ये मैच अब से आधे घंटे में आपके सामने लेकर हाजिर होंगे. आइए चलते हैं कॉम्बॉक्स. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या. खेल की शुरुआत, पहली गेंद कट करने का प्रयास, मोटा सिरा लगा है लेकिन गैप में गेंद जा रही है स्क्वेरिश थर्डमैन की तरफ. अच्छा एफर्ट वहां पर, शॉर्ट थर्डमैन से खिलाड़ी भागे थे गेंद की तरफ और निश्चित रूप से बाउंड्री तो बचाई है. बल्लेबाज उमर खान जिस तरह से खेलना चाह रहे थे उस तरह से पूरी तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन पहली गेंद पर उनको मिले हैं 2 रन. खाता खुलता हुआ पहली गेंद पर एफएस एंटरप्राइजेस का 80 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए एफएस के सामने. सुहास पवार गेंदबाजी करते हुए हवा में और कैच ड्रॉप. बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गलती हुई है. एक आसान सा कैच था और कैचेस काफ़ी ज़्यादा छूट रहे आज सुबह से ही. देखिए इसके लिए 2 कारण हो सकते हैं. पहला तो आप तैयार नहीं है कि मेरे पास स्ट्रोक आएगा, और दूसरा जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज. आप शरीर से मैदान पर है, मन में कोई और विचार चल रहे हैं. तो आई थिंक ये वजह हो सकती है. इसके अलावा एक आखिरी वजह जो है प्रैक्टिस की कमी. वैसे मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिस की शायद कोई कमी रहेगी, क्योंकि ये खिलाड़ी जब से सीजन स्टार्ट हुआ है खेल रहे हैं. बढ़िया शॉट पुल किया है इस बार, कोई मौका नहीं फील्डर के पास. डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का केतन पाटिल के बल्ले से. देखिए ये तो केतन पाटिल की झांकी है और अगले मैच में केतन मात्रे का आना अभी बाकी है. केतन टनाटन कितना जल्दी पकड़ लिया गेंद के लेंथ को, और ये बेहतरीन 6 यहाँ पर लगाया सुहास पवार की उस गेंद पर. बहुत अच्छा एक्शन रीप्ले कैमरा टीम द्वारा. ऑफ स्टंप के लगभग आधा मीटर बाहर जाकर उसको लपेटा था, और वही पुराने इंटरनेशनल क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की याद ताज़ा करता हुआ 6. दुबला पतला शरीर है लेकिन लंबे हिट्स खेलने में बार स्विच हिट करना चाहते थे, तेज निकल गई गेंद. अजय मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग हॉप थी. ये लॉन्ग हॉप पर वो मिड विकेट के ऊपर से इसको 6 में कन्वर्ट कर सकते थे. जी हाँ, इससे पहले भी एक बड़ा शॉट खेला उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ, लेकिन पहले ही मन बनाकर तैयार थे उल्टे स्ट्रोक के लिए. जब आपके सीधे बल्ले से रन्स नहीं बनते तो आप जब खेलते हो रिवर्स स्ट्रोक्स तो वो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है, लेकिन जब अच्छे खासे रन्स आप बना रहे हो सीधे बल्ले से तो फिर इस स्ट्रोक की कितनी आवश्यकता होती है. स्वीप करना चाहते थे, एक तरह से फिर से नहीं
पाए। एक और डॉट गेंद। सुहास पवार की यहाँ तारीफ करना चाहूँगा। बल्लेबाज लगातार बिंदी गेंद खेल रहा है और उसके बॉडी लैंग्वेज को अच्छा पढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं सुहास। उन्हें पता है कि पहले एक बच्चा शॉट आया, लेकिन बाद में एक रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, और तब से लेकर अब तक जो है सुहास पवार ने दबाव में बनाए रखा है केतन पाटिल को। 9 रन बगैर कोई नुकसान के। उमर खान 3 पर, नॉन स्ट्राइकर सेन पर, 6 पर बैटिंग कर रहे इस समय केतन पाटिल अगली गेंद का सामना करते हुए। इस बार उल्टा शॉट और सही नतीजा, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से निकाल दिया है। देखना ये 4 है या 6, और ये 6 रनों का इशारा आता हुआ शानू कुरैशी द्वारा। शानदार शॉट। बहुत ही लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर। देखिए पहले शफल हुए और फिर लास्ट मिनट पे वो रिवर्स स्वीप मारने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। ये स्थिति कैसी है पता है अजय, कि आप कोई शादी में खाना खाने गए, आपने खाना खाया, दांत में खाना कुछ अटक जाता है तो आप टूथपिक से उसको जब तक निकाल नहीं लेते तब तक आप शांत नहीं बैठते। रिवर्स स्वीप शॉट है ना, ये उसी की तरह है। जब तक उसको मारा नहीं, अब उनको जाकर थोड़ा सांस मिली होगी कि यस ये मैंने कर दिखाया। बट नेवरदलेस 6 ओवर में 80 बनाने, 1 ओवर में 15 बन चुके, अब 30 गेंदों में 65। बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत में कहूँगा केतन पाटिल द्वारा, खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने 2 अच्छे छक्के जड़े हैं। और चूंकि गेंदबाजी जो हो रही थी सुहास पवार की, हम देख रहे थे कि वो बाहर की तरफ ही गेंदों को टर्न करा रहे थे। विद द स्पिन खेलने का वो प्रयास हो रहा था। पहले प्रयास में चूक गए थे, लेकिन दूसरे प्रयास में उनको सफलता मिली। अगर एफएस इस मैच को जीतती है, यकीन जानिए एफएस का जो कॉन्फिडेंस है वो 500% ऊपर बढ़ जाएगा। उन्हें वो जीत चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। और एफएस के हर खिलाड़ी को अपने आप को यही सवाल पूछना होगा कि हम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा, और आज नहीं जीतेंगे तो कब जीतेंगे। जी हाँ, ये उनका तीसरा मैच है और पहले दोनों मैचेस उनके बड़े क्लोज रहे हैं। ऐसे मैचेस जो उनको कहीं ना कहीं जीतने चाहिए थे, लेकिन ठीक तरह से फिनिश नहीं कर पाई है ये टीम। नया ओवर लेकर हेमंत हरड, हाजी समद से टेंट से शॉट गेंद पुल किया है और बिल्कुल गैप में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक उमर खान के बल्ले से, ये शानदार चौका। बहुत बढ़िया बल्ले को स्वाइप करते हुए खेला, ये सुनिश्चित किया कि बॉल हवा में न रहे। उमर पिछले मैच में स्ट्रगल किया, उसके पहले वाले मैच में अच्छा खेले थे, और इस मैच में उनका लय में आना ये एफएस एंटरप्राइजेज और फैजल शेख साहब इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चौके ने ज़रूर थोड़ा आत्मविश्वास दिया है उमर खान को। पावर प्ले का दूसरा ओवर, 19 रन। आसान गेंद थी ये, कहीं ना कहीं ज़्यादा ऊपर उठी नहीं। हेमंत हरड अच्छा बाउंस प्राप्त करते हैं, आगे निकले थे, गति में परिवर्तन, स्ट्रोक को एडजस्ट करना पड़ा, अंतिम क्षणों में ढकेल दिया गेंद को बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। वहाँ पर सर्कल के अंदर हालांकि फील्डर मौजूद, 1 रन लिया है। आगरी राजा पोगाव को जिस तरह प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाया, वैसा ही प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये दोनों ओपनर्स को दिलाना ये लाजमी होगा। स्कोर 20 पर पहुँचा है। पावर प्ले का दूसरा ओवर और उसकी 4 गेंदें जो बची है ये निर्णायक रहेगी। रिक्वायर्ड रेट पर बराबर नजरें हैं बल्लेबाजों की। और इस बार काफ़ी ज़्यादा उछाल था, लेकिन बहुत ज़्यादा गेंद से दूर जाकर खेलने का प्रयास किया था, बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे। और हेमंत हरड का हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, इसको भी भूलना नहीं होगा। कासिम बाबू ने जो कामयाबी हासिल की बिकॉज ऑफ हिज हाइट, हेमंत हरड ही हैज़ गॉट वेरी गुड हाइट, और बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए केतन पाटिल। 20 विदाउट लॉस। और गेंद के साथ काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं हेमंत हरड इस बीपीएल में। आगे निकलकर सामने लॉफ्ट किया है, ये बहुत ही अद्भुत स्ट्रोक है, थ्रू द लाइन, 6 रन। क्या मूड ठीक करने वाला वो 6 था, और अंग्रेजी में कहा जाए इसको तो वंडरफुल शॉट। शफल हुए, जगह बनाई, और देखिए किस तरह गेंद के ऊपर हस्ताक्षर किए केपी। 26 रन। बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हुए केपी, केतन पाटिल। स्लॉग स्विप किया इस बार, ये भी आसमान में चली गई है और कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से इस बार एक और छक्का। एफएस एंटरप्राइजेस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर क्या आज देखने मिलेगा? टूर्नामेंट के 6 हो चुके हैं, अब 83। क्या बैठक शॉट था। अफलातुन टाइमिंग के जरिए अब स्कोर 32 पर पहुंचा। कुल मिलाकर ये 7वां मैच है बीपीएल सीजन 2 का। गेंदों की लेंथ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और उनको जड़ भी रहे हैं। बहुत परफेक्ट स्लॉग स्वीप था ये। रन संख्या 32 बिना किसी नुकसान के। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे। अच्छा बैटल चल रहा था, लेकिन इस बैटल को आखिरकार जीत लिया गेंदबाज हेमंत हरड ने।
थोड़ी जल्दबाजी मैं कहूँगा, क्योंकि इसी ओवर में तो 2 6 आए हैं, थोड़ा रुकना। अजय, इसीलिए जो टेस्ट क्रिकेट है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट इज़ एन एग्जामिनेशन, अदर क्रिकेट और फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट आर एग्जीबिशन। ये वो समय है जब आपको अपने आप को रोकना है एंड टू गो फॉर अ डिफेंसिव शॉट, लेकिन वो नहीं हुआ। रनों की औसत को नीचे लाने का प्रयास था रिक्वायर्ड रन रेट को, और वहीं पर 32 के योग पर गिरता हुआ पहला विकेट। लेकिन अब 24 गेंदे 48 रन। और काफ़ी अच्छी गेंद थी जिस पर विकेट प्राप्त किया है हेमंत हरड ने। गुड लेंथ से गेंद ऊपर उठी थी, अतिरिक्त उछाल लेकर आ रही थी। बैट्समैन ठीक तरह से पोजीशन में नहीं थे, बड़े शॉट के लिए ज़रूर गए, लेकिन टॉपेज लगा और सीधी हवा में खड़ी हो गई थी। 32 पर पहला विकेट गिरा है। 24 रनों की अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं केतन पाटिल। पावर प्ले का खेल कहा जा सकता है कि आगरी राजा पोगाव के विरुद्ध इस समय एफएस एंटरप्राइजेस के नाम रहा है, और रिक्वायर्ड रेट जो पारी की शुरुआत में 13 से थोड़ा ऊपर था उसको 12 पर लेकर आए हैं बल्लेबाज। रन बनाने का औसत इस समय ठीक 16 रन प्रति ओवर। बचे हुए 4 ओवर्स में 48 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए एफएस एंटरप्राइजेस को। 7वां मैच है ये बीपीएल सीजन 2 का, लेकिन अभी तक इतना बड़ा टारगेट किसी भी टीम ने सफलता के साथ चेज नहीं किया है। शायद वो हो सकता है जो किसी ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, ये जज्बा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना कि जो किसी ने नहीं किया वो मैं करूँगा। जब माउंट एवरेस्ट पर पहली बार शेरपा तेनसिंह चढ़ा, तब तक किसी को पता भी नहीं था कि माउंट एवरेस्ट सर हो सकता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब तक चंद्र पर नहीं गया था, तब तक किसी को नहीं लगा कि चांद पर जाया जा सकता है। मेरे ख्याल से बीपीएल में भी आप मुझे बताइए कि माउंट एवरेस्ट पे जाना आसान है, चांद पे जाना आसान है, कि ये स्कोर चेस करना आसान है? निश्चित रूप से ये स्कोर चेस करना आसान होगा। आक्रमण जारी रखते हुए सुहास पवार, नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं हम्माद अंसारी। शॉर्ट गेंद पुल किया और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया। शानदार छक्का। ये उमर खान है। उमर अगर अपने रंग में आ गए तो यकीन जानिए आज के पूरे दिन के क्रिकेट में दर्शक जब रात को सोएंगे उमर की यादों के साथ सोएंगे। और ये वो स्ट्रोक था उमर खान जिसके लिए जाने जाते हैं, और उमर अगर इस तरह खेलते रहे तो उम्र दराज होगी अपनी टीम की भी और आगे ले जाएंगे। 38 for 1। मार्जिन ऑफ एरर ना के बराबर टेनिस बॉल क्रिकेट में बॉलर्स के लिए। थोड़ा भी इधर उधर हो जाते हैं लाइन और लेंथ में तो मार पड़ती है। इस बार कलाइयों का उपयोग करते हुए फ्लिक कर दिया है, जोरदार फ्लिक, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप में। एक ही रन लेने का अवसर उमर खान के पास। एक और चीज़ आपको मैं अजय बताऊं कि दोनों आइकॉन खिलाड़ी है, आपस में कई टूर्नामेंट साल में खेलते हैं, लेकिन जब आप भिवंडी में एक आइकॉन टूर्नामेंट खेलने आते हैं तो खिलाड़ियों को आपने देखा नहीं है, इसलिए उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग से आप वाकिफ़ नहीं है। लेकिन जब सुहास पवार और उमर खान आमने सामने आते हैं ना, तो वो हाई क्लास क्रिकेट एक्सपेक्टेड है कि दोनों को एक दूसरे की स्वॉट एनालिसिस जिसको कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, वो बराबर उमर खान जानते हैं। इसलिए वो दो बड़े बेहतरीन शॉट उन्होंने खेले सुहास के सामने। अब एंगल चेंज करते हुए सुहास पवार, और ये नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉट फाइन लेग की दिशा में। चौका तो बचाया गया है लेकिन नो बॉल है। बीमर 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद उमर खान के लिए सोने पे सुहागा रहेगा। फ्री हिट। ये बॉल पर उमर खान के लिए खोने जैसा कुछ भी नहीं है, और अगर इस पर चौका या छक्का आ जाता है तो रिक्वायर्ड रन रेट और नीचे आ जाएगा। करंट रन रेट वाकई में बहुत अच्छा चल रहा है, 17.57। और दबाव इस समय गेंदबाज सुहास पवार पर। इस बार पहले ही शफल कर चुके थे, फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट गेंद का। सुहास पवार थोड़े महंगे साबित हुए हैं इस स्पेल में। अभी तक 24 रन खर्च किए उन्होंने, 9 गेंदें की है, और उनसे अपेक्षा ये होती है कि वो शुरुआत में विकेट्स दिलाए अपनी टीम को। एक और बढ़िया गेंद, लेकिन उतनी ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेला है। बैट का फेस खोलते हुए दिशा दिखाई बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। 1 रन लेने का अवसर वहां पर उमर खान के पास। 42 पर रन संख्या पहुंच चुकी है। यहां से और 38 रनों की आवश्यकता है और 20 गेंदें शेष है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विराज सोरगे, ओनर ऑफ बालाजी ग्लोबस। उनका हार्दिक स्वागत है। सुहास पवार उमर खान को वो आज़ादी भी नहीं दे रहे हैं, बल्ले के नीचे नहीं खिला रहे, स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं दे रहे हैं। और अब जो लेफ्टी बैट्समैन है हम्माद अंसारी, इनके लिए तैयार होते हुए सुहास पवार।
आगे रखी हुई गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए स्ट्रोक में, ग्राउंडेड शॉट बना डीप मिड विकेट की तरफ, सिंगल। और इसके साथ ही खाता खुला हम्माद अंसारी का। हम्माद एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, इस सीज़न में काफ़ी चमक रहे हैं बल्ले के साथ। उनके साथ हम देखें उनके पास ऑफ साइड और ऑन साइड दोनों तरफ अच्छे शॉट्स है और पावरफुल स्ट्राइकर है। उमर खान के साथ खेलने का मौका मिल रहा है उनको। बढ़िया शॉट, लेकिन प्रोटेक्शन है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। एक ही रन मिलेगा और इसके साथ ही ये महंगा स्पेल समाप्त होता हुआ सुहास पवार का। 2 ओवर में 27 रन खर्च किए, कोई विकेट नहीं मिला। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में एफएस एंटरप्राइजेस को 36 रनों की आवश्यकता है। दूसरा ओवर जब समाप्त हुआ था तो रिक्वायर्ड रेट जो था वो 12 का था और अभी भी 12 का है। 18 गेंदों में 36 रन। लेकिन जो दूसरे ओवर की समाप्ति पे चित्र था वो थोड़ा सा अब बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि कोई विकेट नहीं गिरने दिया है। तो मेरे ख्याल से उमर खान 9 बॉल 17, हम्माद अंसारी 2 बॉल 2। उमर खान को बड़े भाई का रोल अदा करना ही होगा। ड्रिंक्स इंटरवल लिया जा रहा है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता चलूं, एक खुशखबरी है। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स जो इस प्रतियोगिता में 18 टीमों के लिए खेल रहे हैं, उन 18 के 18 खिलाड़ियों के लिए महापुली की बड़ी शख्सियत फरहान पटेल साहब द्वारा एक नायाब तोहफा हर क्रिकेटर को दिया जाएगा जो ऑल इंडिया आइकॉन खेलने आ रहा है। ये इसलिए कि आप हमारे शहर में खेलने आए, आपने हमारे दर्शकों का मनोरंजन किया, हमारे शहर की आपने शोभा बढ़ाई, इसलिए वो तोहफा उनको इनायत किया जाएगा। इसके अलावा हम आभारी हैं हमारे 70-70 स्पोर्ट्स के, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आप देख रहे हैं टी शर्ट्स तैयार किए हैं। फुल टॉस अली असगर भाई धाणू, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया फुल टॉस प्रोडक्शन करके आज जो गेंदें दी है, 24 कैरेट फुल टॉस आज दुनिया में छाया हुआ है। A1 चिकन सेंटर, अगर आपको चिकन खाने की इच्छा हो सीधा A1 चिकन सेंटर में जाइए और अपनी पसंदीदा चिकन को लाइए और लजीज खाना बनाइए। एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन, जिन्होंने एक्रेलिक की बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफियाँ तैयार की है। O2 लाइव शाहिद पापा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर O2 लाइव, ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है और साफ़ सुथरा पानी आपको सेहतमंद रखता है, इसलिए उनका विशेष आभार। धनेश स्पोर्ट्स कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल, जो अच्छे क्रिकेट को हमेशा खिलाना पसंद करते हैं, और पांडुरंग धर्मा पाटिल जी इनके सहयोग के लिए उनका भी विशेष आभार। और हम आभारी है शुमाइल सूसे के, जिन्होंने पीने की जो चाय है हमारे तमाम सभी लोगों को तरोताज़ा रखने का काम शुमाइल सूसे यारों का यार, और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार। जी हाँ, मुंबई तड़का, मुंबई तड़का, जो एहसास दिलाए घर का। और मुंबई तड़का और भिवंडी झटका एक साथ एसके स्पोर्ट्स एसके एंटरप्राइजेस को आप देखेंगे। लेकिन 18 गेंदों में 36 और उमर खान तैयार। नए ओवर में सामना करेंगे हेमंत हरड़ का। पिछले 2 ओवर बहुत महंगे रहे हैं आगरी राजा पोगाव के लिए। एफएस एंटरप्राइजेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको कहा जाता है। और जब आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं तो केवल मेहनत नहीं होती, उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। और अब उमर खान गरज पड़ा, बरस पड़ा, टूट पड़ा, ठोक डाला, 6 रन, आलीशान। शानदार छक्का, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए एफएस एंटरप्राइजेस के मात्र 19 गेंदों में ये 50 रन उनके लिए आए हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक कर लिया था इस बार। उमर अब फॉर्म में आ चुके हैं, 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर में उमर 11 की, और उस टीम के कप्तान हैं। ऑल इंडिया आइकॉन टूर्नामेंट खेल रहे हैं इस बार। देखिए जल्दी शफल हुआ और लास्ट मिनट पे अपने शॉट को चेक किया। अजय, आपको नहीं लगता उमर खान बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। और वो जो कहा जाता है कि आप जब संकट में फंस जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी चेतना भी सर्वोच्च स्थान पर रहती है, वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है बल्लेबाजों में भी, और ख़ासतौर पर एफएस एंटरप्राइजेस टीम द्वारा। जिम्मेदारी का एहसास है उनको। विकेट आसानी से फेंकने वाले नहीं है उमर खान, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 24 पर इस समय पहुंच चुके हैं, मात्र 11 गेंदों का सामना किया है। दोस्तों बीपीएल सीजन 2 में आज हमने हैट्रिक देखा, फाइफर देखा, वैभव माली 2 ओवर 11 रन 6 विकेट। कल हमने केतन मात्रे का अर्धशतक देखा। ये कुछ हाइलाइट्स हैं। हम्माद के लिए इस बार
लेग स्टंप की लाइन और हमाद थोड़ा सा टेंटेटिव नज़र आ रहे हैं। अजय, ऐसे में हमाद के लिए मुनासिब यही होगा कि वो उमर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे। हाँ बिल्कुल, ये उनका कहीं ना कहीं कर्तव्य है इस समय कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे, और यदि कमज़ोर गेंद मिलती है तो उस पर प्रहार ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यदि होती है उनके विरुद्ध तो सिंगल लेना ही बेहतर है। 15 गेंदे 29 रन। और इस बार हमाद अंसारी भी अब आ चुके हैं और वहां पर बेहतरीन कैच इन दी मोशन, शेखर दलवी द्वारा ये बढ़िया कैच। शेखर की फिटनेस की तारीफ करनी होगी। कल तक शेखर क्या था किसी को पता नहीं था, आज शेखर ही शेखर है। बल्लेबाजी में शेखर, क्षेत्ररक्षण में शेखर, और यहाँ पर हमाद अंसारी का बेहतरीन कैच। शेखर का खेल भी आज पूरे शिखर पर उनके रहा है। बहुत ही अच्छा कैच, ये एंटिसिपेशन लाजवाब था। जैसे ही स्ट्रोक खेला गया था उन्होंने अपनी बाई तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था, और बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं अनुभव की थोड़ी सी कमी खली। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि स्ट्राइक रोटेट करना यहाँ पर बेहतर हो सकता है हम्माद अंसारी के लिए, लेकिन लंबे शॉट के लिए गए और कैच आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए केवल 2 रनों का योगदान दे पाए। नए बैट्समैन माजिद बोबड़े कप्तान आए हैं, कप्तान अच्छे फॉर्म में भी नजर आए हैं इस बीपीएल में। 51 पर दूसरा विकेट गिरा है। देखिए, बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी चेंजेस हमने देखे हैं एफएस की ओर से। पहले दोनों मुकाबलों में जो ओपनर्स उन्होंने भेजे थे, हालांकि पहले मैच में भी 2 अलग ओपनर्स, दूसरे मैच में भी 2 अलग ओपनर्स, इस मैच में भी 2 अलग ओपनर्स, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच में ऐसे लगता है कि उनको शायद वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी मिला है केतन और उमर खान का। उमर खान अमूमन पावर प्ले में खेलते नहीं हैं। उनकी जो उमर 11 टीम है, उस्मान पटेल और मुन्ना शेख, ये ओपनिंग करते हैं उमर 11 के लिए। लेकिन अभी आइकॉन टूर्नामेंट है, टीम को ज़रूरत है और वो आए, और देखिए रिजल्ट साफ नज़र आ रहा है। यहाँ से 14 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है एफएस एंटरप्राइजेस को। हेमंत की हाफ ट्रैकर बॉल थी, ये अलग बात है कि बॉल स्ट्रेट निकली, कोई मूवमेंट नहीं था, और उमर खान ने एन वक्त पर अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करते हुए धकेला 1 रन के लिए विकेटों के सामने। 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी मैच जीतने के लिए 28 रनों की ज़रूरत है 13 गेंदों में। हेमंत हरट भी कमाल के खिलाड़ी है हरीश जी, कई सालों से खेल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी वो सीखने की चाह अभी भी नज़र आ रही है। जिस तरह से ये लेग कटर गेंद जो कर रहे हैं इस सीज़न में, बहुत कंट्रोल के साथ। पहले बहुत मतलब रेयरली देखने को मिलता था कि वो लेग कटर करे, ज़्यादातर अपने उछाल से डराते थे, धमकाते थे पेस से बल्लेबाजों को, लेकिन इस सीज़न में उनकी स्लोवर वन काफ़ी अच्छी काम कर रहे हैं उनके लिए। 13 गेंदे 28 रन। हरड़ की ये गेंद इस बार बहुत ही नफासत के साथ उसको फ्लिक कर दिया है। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन। माजिद बहुत तेज़ भागते हैं। अजय, मेरे ख्याल से जयेश पाटिल, माजिद बोबड़े ऐसे कुछ खिलाड़ी है जो न केवल अच्छा स्ट्रोक प्ले रखते हैं बल्कि उतना ही तेज़ विकेटों के बीच में भागते भी हैं। जी हाँ, उसमें भावेश पवार का भी नाम हम जोड़ सकते हैं, केतन पाटिल है, वो भी एक ऐसे खिलाड़ी है। प्रतीक पाटिल को हम देखते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में माहिर है, और माजिद बोबड़े भी। 54 पर 2, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। एक और रोमांचक मुकाबला बीपीएल सीजन 2 का हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये बराबरी का संघर्ष इस समय नजर आ रहा है। 13.5 का रिक्वायर्ड रेट, बल्कि करंट रन रेट है, और 13 का जो है वो रिक्वायर्ड रेट है। मेरे ख्याल से जो दोनों बैटर्स हैं उनको 13 के रिक्वायर्ड रेट की जगह पर 12 गेंदों में जो 26 है इसके ऊपर अगर वो फोकस करते हैं, यानी कि 2 बड़े शॉट्स खेलने हैं, 12 में 2 कमज़ोर गेंदे चाहिए। दोनों या तो उमर को मिले या फिर माजिद को मिले, या दोनों को एक एक मिले। दोनों को एक दूसरे का साथ निभाते हुए, जो कहते हैं ना बोथ दी बैट्समैन शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वो वाला क्रिकेट अगर वो खेलते हैं तो विजय का मीठा स्वाद और 2 अंक तालिका में अपना खाता खोल पाएगा एफएस एंटरप्राइजेस। धमाकेदार शुरुआत रही इस पारी में एफएस एंटरप्राइजेस की, लेकिन थोड़ी बहुत वापसी गेंदबाजों ने भी की है। हेमंत हरड भी हालांकि महंगे साबित हुए, 27 रन खर्च किए, लेकिन उन्होंने 2 बहुमूल्य विकेट्स प्राप्त किए हैं। और जब आप विकेट्स लेते हो तो कहीं ना कहीं नए बैट्समैन के लिए उतना आसान नहीं होता है आते ही बड़े स्ट्रोक्स खेलना। माजिद ने 2 रनों से अपना खाता खोला है, 1 गेंद खेली है। 12 गेंदों पर 25 रन बनाकर उमर खान बैटिंग कर रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द ये बल्लेबाजी जो है इस समय एफएस एंटरप्राइजेस की मंडरा रही है। 12 गेंदों में अब 26 रन चाहिए। बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है क्योंकि दोनों भी फ्रंटलाइन बॉलर्स अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, हेमंत हरड और सुहास पवार। शेखर दलवी आक्रमण पर आते हुए। दोनों जो मुख्य गेंदबाज थे उन्होंने अपने 2-2 ओवर कर दिए हैं।
बहुत अच्छा आपने उंगलियों को रोल किया, लेकिन शॉट के लिए जगह बनाते हुए बैकफुट पर जाकर उमर खान का बैकफुट पंच, और ये 4 रन उमर के नाम। कमाल का स्ट्रोक। टेनिस बॉल क्रिकेट में इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। बैकफुट कवर ड्राइव, गेंद को टर्न होने दिया उन्होंने, और कहीं ना कहीं शायद उन्होंने कल भी देखा होगा कि शेखर दलवी किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। लेग ब्रेक गेंदबाजी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे, वेट करते हुए स्ट्रोक खेला और बिल्कुल गैप में। गेंदबाजी की तोड़ देते हैं कमर जब फॉर्म में आते हैं उमर। 58 पर 2। और ये देखिए आज की सुबह का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक, यहां पर हम कह सकते हैं उल्टा पुल्टा। उमर खान, खानों का खान, माय नेम इज खान एंड आई एम अ पावरफुल हिटर। उमर खान वाकई में अब बनते हुए एफएस एंटरप्राइजेस की शान। अद्भुत स्ट्रोक, इस बार पहले ही तैयार थे और गेंद भी उनके पाले में थी। ये लगभग हम देखें तो आगे रखी हुई गेंद थी, थोड़ा सा फ्लाइट दिया था, उसको बहुत अच्छे तरह से परख लिया था और खाली क्षेत्र में सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। उमर खान 14 गेंदों में 35 पर खेलते हुए शेखर दलवी के 2 गेंदों में 10 रन अब तक लूट मचाई है। उमर खान का एक बेहतरीन पुल शॉट और गेंद सीधा मैदान के बाहर, 6 रन के लिए फ्लैट 6। भव्य शॉट। अब तो ऐसे लग रहा है कि ये गेंद जो है वो फुटबॉल की तरह नजर आ रही है उमर खान को। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन देखिए हालांकि थोड़ी सी आंखें हटी थी उनकी, लेकिन बिल्कुल सही संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शेखर दलवी की बेरहमी से पिटाई कर रहे इस समय उमर खान। 70 पर 2, अब केवल 10 चाहिए और इस तरह बैटिंग होती रही तो मुझे लग रहा है कि 2 या 3 बॉल बाकी रखकर एफएस एंटरप्राइज जीत जाएगी। और हो सकता है कि इस टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक भी हमें देखने को मिले। 41 पर पहुंच चुके हैं उमर खान, मात्र 15 गेंदों का सामना किया है। एक मैच विनिंग पारी मेरे ख्याल से वो खेल रहे हैं। अब और 10 रन चाहिए। इस बार जगह बनाई और गैप में निकाल दिया है। एक और दर्शनीय बैकफुट कवर ड्राइव, 4 रन। उमर खान और माजिद बोबरे ये दोनों क्रीज पर है, लेकिन उमर खान इस वक्त आकर्षण का केंद्र बिंदु। देखिए अंदर आती हुई गेंद को पड़ा और शेखर दलवी के इसी ओवर में मैच को मैं ख़त्म करूंगा। पहले 2 ओवर तक किसी को लगा भी नहीं था, लेकिन जो बात हमने कही कि अगर आज नहीं जीतेंगे तो कब जीतेंगे और हम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा, वो जज्बा खान का, और यहाँ पर मैच को फिनिश कर दिया है 1 ओवर पहले। और उमर खान 50 रन मार दिए। केतन मात्रे के बाद दूसरा अर्धशतक लगाने वाला उमर खान क्रीज में डीप गए और लपेट लिया। बॉल चली गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, सड़क पे कड़क। उमर खान आते हुए दूसरा अर्धशतक, 17 गेंदों में 51 रन, 300 का स्ट्राइक रेट और 7 सिंगल, 1 डॉट बॉल, 1 डबल, 3 चौके और 5 छक्के। अभिनंदन उमर खान, अभिनंदन एफएस एंटरप्राइजेस। मैच समरी आपकी स्क्रीन पर। 79 पर 5 आगरी राजा पोगाव टीम ने अच्छा स्कोर खड़ा किया था। शेखर दलवी ने 31 रनों की शानदार पारी खेली थी। अजय भोईर ने अच्छा स्टार्ट दिया था, 17 रन बनाए थे। गेंदबाजी में आकाश को 1 विकेट मिला, 2 विकेट अख्तर शेख को मिले थे, 2 दीपक ने विकेट चटकाए थे। अच्छी वापसी की थी उन्होंने, लेकिन जवाब में एफएस एंटरप्राइजेस की ज़बरदस्त शुरुआत रही और उमर खान जो ओपन करने आए थे 17 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए उन्होंने। मैच फिनिश किया 5वें ओवर में ही 80 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 8 विकेटों से ये मुकाबला जीता, 7 गेंदें शेष रहते हुए एफएस एंटरप्राइजेस ने। तो एफएस एंटरप्राइजेस टीम का खाता खुला है पॉइंट्स टेबल में। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। BC4 और अल्ताफ बाली द्वारा प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का अभी अभी एक मैच खत्म हुआ है और इसको जीता है एफएस एंटरप्राइजेस ने। 2 पॉइंट लेकर अंक तालिका में अपनी जगह उन्होंने बनाई है, इसके लिए मुबारकबाद फैजल शेख साहब को। आइए अब इस मैच के मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए मैं वसीम भाई अंसारी, बालाजी ग्लोबस के ओनर विराज चोरगे, जीतू मानेरकर साहब और अमोल पाटिल, इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ जुड़ जाएं। मैन ऑफ द मैच है उमर खान। सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आइए उमर, जीतू मानेरकर साहब द्वारा ये गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है कैमरे के सामने। ये तोहफा आप जब घर लेकर जाएंगे, घर के तमाम मेंबर्स खुश हो जाएंगे। द ड्रीम होम केक का ये गिफ्ट हैम्पर, मीठे केक आपको मुंह मीठा कराएंगे। लापास बुटीक, हमारे वसीम अंसारी भाई, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया शर्ट है।
उमर, आप टी शर्ट ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन ये शर्ट पहनकर आप शान से मिल्लत नगर से पूरी दुनिया में घूमने निकल सकते हैं। और सबसे आखिर में विराट सोरगे साहब द्वारा एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये खूबसूरत मैन ऑफ द मैच का एक्रेलिक की ट्रॉफी। कंग्रेचुलेशंस। आइए उमर, माय नेम इज खान एंड आई एम अ पावरफुल हिटर, खानों के खान। उमर, आखिर में ये जो पसीना बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेहनत सफल हुई। हाँ, 2 मैच के बाद मेहनत सफल हुई। बहुत फ्रस्ट्रेट था पहला मैच में। दूसरा मैच जो 6 बॉल 12 रन मेरे से हुआ नहीं। मैं कैप्टन को बोला मेरे को ऊपर ही बैटिंग करने दो, ज़रा सेट होने में विकेट को टाइम जाएगा मुझे, तो वो एक लाइफ का फ़ायदा उठाया और मैं आ गया। अल्ताफ भाई के शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा शो था। लास्ट ईयर का मैं मिस कर दिया था टूर्नामेंट, मुझे खेलना था लास्ट ईयर, और ये बार मेरे को एफएस के तरफ से मौका मिला और वो मौके पे भी थोड़ा खरा उतरा। जब आप खेल रहे थे तो पूरा स्टेडियम डगआउट सब तालियों से गड़गड़ा रहा था, बहुत खुशी हुई होगी। क्या आज लगान देख के आए थे आप? लगान को देखे हुए पहले, और खुश इसके लिए पहले बस नर्वस थे, मेरे से वो लोग को उम्मीद बहुत थी। माजिद ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया, माजिद के सपोर्ट से आज मेरी बैटिंग हुई। बहुत 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 अच्छा खेले आप। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द धन्यवाद क्वेश्चन। उमर, आपको अगले मैचेस के लिए ऑल द बेस्ट। तो आइए चलते सीधा कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया। शुक्रिया। Thank you, Harish, and thank you, Prerna. Back to cricket now. Welcome all of you. You are watching Bhiwandi Premier League Season 2 from historical Parshuram Tawre Stadium. Good afternoon, all of you. From BC4, Altaf Bali, the BPL chairperson Sanjay Matre, Pioneer Sports Club. The match between Balaji Globus, Viren and Viraj Chorge Fam team and Gaudevi 3-star Thakurpara, Datta Tare, Mahesh Thakre and Subhash Thakre owner team. Harish Pandya joining me in commentary.